Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture, I will describe you the very important and some technical approaches regarding the botanical study, regarding the floral study. The chief heading, as you can see at the top of my picture, the semi-technical description of floral parts. As you all know, there are so many floral parts like sepals, petals, the pedicels, bracts, bracteoles, anther, filaments, gynoecium, ovary, carpels, etc. For that, there is need to write some essential symbol, and that essential symbols often collectively called as semi-technical description of floral parts. Semi-technical means the parallel technology that some mathematical symbols, some mathematical approaches and some mathematical formula apply to determine whatever the condition for the flower. For example, as you can see just near to my picture, the C in bracket 5, it means there are 5 in numbers of petals. Out of 5 they all are fused, so C in bracket. That means there is a condition in which if the total number of corolla are 5 in a plant or a flower, then there will be word C and the number is 5, so there will be 5. If they are fused, then the 5 will be in bracket. As like this, so many floral description are available in flowering plants that often used to determine whatever the short form for the long form of floral parts. For example, if you are going to write the gynoecium, you need to search the few letters, you need to have some space in your copy. But for the semi technical description, there is need to write only one word, that is only one letter, that is G. As you can see just at the below of my picture, there is A8. It means if you are going to write androecium, then there are so many letters required in order to complete the word androecium, and the space in copy for the time in copy may be also applied. But for the semi technical description, as you can see the 8A, that is the A word for androecium, and number 8 represent the total number of anthers are 8. That means overall phenomenon, overall semi-technical description, we can say that it is very easy to understand and write the overall long form of floral parts in very short form. In this video lecture, I will describe you what are the important characteristics of other floral parts and what are the important symbol, what should be the important symbol for the other characteristic parts. This is the first part of semi-technical description. In next video lecture, I will describe you the second part, third part, etc. But this is the first part. Let's begin the concept and write the symbol for the all kinds of particular floral parts. So without delay timing, let I introduce the importance and let I introduce the uh, other importance of other important floral parts and their symbol. Now back to the whiteboard in order to understand the symbol of other basic floral parts. लिसन स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे अपने कॉपी में आप 2 टेबल बना लीजिए इस तरह से, ठीक है। ये ऐसे 2 टेबल आप बना लीजिए। यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे एक लिखेंगे सीरियल नंबर, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, जिसमें 1 2 3 4 हो, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है फ्लोरल पार्ट्स, ठीक। यहाँ पे लिख देना है फ्लोरल पार्ट्स, और उसके बाद आपको लिखना है सिंबल, ठीक। पहले क्या लिखना है, सीरियल नंबर, उसके बाद फ्लोरल पार्ट्स, फिर लिख देना सिंबल। यहाँ पे हम फ्लोरल पार्ट्स लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे XYZ जो भी उसका सिंबल होगा वो लिखेंगे। ये वर्ड में होगा, लेटर में, और ये सिंबल में होगा, ठीक है। अब एक एक करके सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते जाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाए, ठीक। चलो अब आगे आते हैं, पार्ट 1 है। अब एक एक करके चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है पॉइंट 1, मेल इन ब्रैकेट स्टेमिनेट। अगर ये कंडीशन है तो आप क्या लिखेंगे, ये बना दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा स्टेमिनेट। ये फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है, होल फ्लावर में अगर सिर्फ स्टेमन है तो ये स्टेमिनेट है, अगर सिर्फ पिस्टिल है तो क्या हो जाएगा, पिस्टिलेट। पिस्टिलेट को भी चेक कर दे रहे हैं, ये देखिए,
क्या है, फीमेल पिस्टिलेट। अगर ये कंडीशन है तो आप क्या लिखेंगे, ये सिंबल बना दीजिएगा, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल पिस्टिलेट, ठीक है। आई होप दोनों कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। ये कॉन्सेप्ट है पिस्टिलेट का यानी फीमेल फ्लावर का, और ये कॉन्सेप्ट है मेल फ्लावर का यानी कि स्टेमिनेट का, ठीक है। आप सिंबल वाले कॉलम में इसको लिखते जाएंगे, दोनों अलग अलग होगा, ठीक है। ये फीमेल के लिए होगा, ये मेल के, यानी कि ऊपर के लिए क्या होगा, ये स्टेमिनेट और ये पिस्टिलेट, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट की मैं बात कर दूँ, बाईसेक्सुअल अगर है, दोनों हैं मेल और फीमेल, जैसे अगर ये एंथर ये स्टिग्मा स्टाइल है, उसी के साथ एंथर भी जो है फ्लावर एक है, तो इसके लिए आप ये सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें मेल और फीमेल दोनों रहेगा, ठीक। दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर स्टिग्मा स्टाइल यानी कि आपका क्या है, आपका जो है फ्लावर में गाइनोसियम भी है और एंड्रोसियम भी है, दोनों है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, उसके लिए आपको ये वाला सिंबल यूज करना पड़ेगा, ठीक। आई होप आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलो आते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट, एक्टिनोमॉर्फिक। वीडियो लेक्चर के स्टार्ट में ही आपको बताया गया था कि फ्लावर अगर सिमेट्रिकल है तो वो दो तरह का होगा, या तो एक्टिनोमॉर्फिक होगा या फिर जाइगोमॉर्फिक होगा। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कैसे होते हैं, ये फ्लावर किसी भी एंगल से इसको आप काट सकते हैं, ऐसे बाइसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लावर को आप किसी भी एंगल से उसको आप अलग कर सकते हैं। पेटल्स हमेशा ऊपर से देखने पे एक सर्किल बनाते हैं, ऐसे एक सर्किल बनाते हैं, ऐसे लगता है कि वो छाता टाइप का बनाते हैं, चाहे 4 पेटल हो, 5 पेटल हो, 5 पेटल हो, 4 पेटल हो, किसी कितने भी पेटल्स हो, लेकिन ये एटलीस्ट मोर देन 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया सकता है, ठीक है। तो इसके लिए सिंबल आपका ये रहेगा, ये क्या, ये इस तरह का सिंबल अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक है। कंडीशन क्या होगा, फ्लावर सिमेट्रिकल हो और फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू मोर देन 2 हाफ्स। तो इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, और ये वाला सिंबल आप हमेशा एक्टिनोमॉर्फिक के लिए यूज करेंगे, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के लिए क्या यूज होगा, ये वाला सिंबल, एक सर्कल बना दीजिएगा और बीच में प्लस का सिंबल, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। मैंने बोला था कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनको 2 फ्लोरल हाफ में ही इसको डिवाइड किया सकता है, सिर्फ 2 इक्वल हाफ में ही डिवाइड किया सकता है, उसके बाद से वो डिवाइड नहीं होते, इस तरह का, ऐसे पी फ्लावर है। तो इसके लिए आप परसेंट का सिंबल यूज करेंगे। जाइगोमॉर्फिक के लिए क्या यूज होगा, परसेंट का सिंबल, ठीक है। ये आपका जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक को रिमेंबर करा दें, ये एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक। अभी छोटे छोटे सिंबल हैं, इसको आप लर्न करते जाएंगे साथ साथ, नहीं तो आगे इतनी प्रॉब्लम होगी आपको कि ये बड़े सिंबल्स में आ जाएंगे, फ्लावर्स ऐसे हो जाएंगे जिसमें बाईसेक्सुअल फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक ये वर्ड आ जाएगा, तो क्या यूज करेंगे, बाईसेक्सुअल फ्लावर और एक्टिनोमॉर्फिक अगर वर्ड एक साथ दोनों आ गए तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये लो बाईसेक्सुअल का ये और एक्टिनोमॉर्फिक का ये, ठीक है। तो आप यहाँ घबराने की बात नहीं है, यहाँ घबराने की बात तब होगी जब आप छोटे छोटे सिंबल्स को आप रट नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। चलो आते हैं ब्रैक्ट। ये ब्रैक्ट क्या होता है, मैंने बताया था कि अगर फ्लावर मेन ब्रांच से ऐसे अटैच है, मान लो यहाँ फ्लावर है, तो एक यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक यहाँ पे होता है, तो ये जो पहला लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसी को बोलते हैं ब्रैक्ट। क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट। और ये जो दिख रहा है इसको ब्रैक्टियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रैक्टियोल। तो या तो फ्लावर में ब्रैक्ट होता है या फिर ब्रैक्ट नहीं होता है। अगर फ्लावर में मान लो ब्रैक्ट है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे, कंडीशन क्या है, ब्रैक्टिएट फ्लावर। इसको पहले में ही बताया जा चुका था, और इसके लिए जो सिंबल यूज होगा वो सिंपल जो है BR यूज कर लेंगे, कैपिटल B स्मॉल R। इसको आप नोट कर लीजिए। 2 कॉलम मैंने बोला था, इसमें 2 तरह के कॉलम बनेंगे, एक में फ्लोरल पार्ट्स हो जाएगा, एक में सिंबल हो जाएगा। सिंबल मैं यहाँ पे समझाते जा रहा हूँ, फ्लोरल पार्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट में आते हैं। मैंने बोला या तो ब्रैक्ट होता है या तो ब्रैक्ट नहीं होता है। अगर ब्रैक्ट नहीं होता तो उसको बोलते हैं ई ब्रैक्टेट, अगर ब्रैक्ट है तो बोलते हैं ब्रैक्टिएट, अगर ब्रैक्ट नहीं है तो ई ब्रैक्टेट, और उसके लिए सिंबल होगा EBR, ई इन कैपिटल एंड BR इन स्मॉल। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। इकट्ठे तब प्रॉब्लम होगी जब आपके पास फ्लावर के कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको लिखने को मिलेंगे। फ्लावर हो सकता है कि बाईसेक्सुअल हो और उसके पास एक्टिनोमॉर्फिक प्रॉपर्टी हो, ब्रैक्ट भी हो, तो क्या होगा, इकट्ठे सारे सिंबल आपको लर्न भी करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट। एक होता है ब्रैक्टियोल, अभी मैंने आपको बताया था ये फ्लोरल पार्ट्स है और ये आपका क्या है, मेन अटैचमेंट है, तो यानी इसको बोलेंगे ब्रैक्ट। और कुछ समय कुछ दूर जाने पे एक और छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज ब्रैक्टियोल। अगर ब्रैक्टियोल है तो क्या बोलेंगे, BRL,
क्या बोलेंगे, BRL, ठीक है। अगर ब्रैक्टियोल नहीं है तो उसको बोलेंगे EBRL, तब ये स्मॉल में हो जाएगा। तो पहले तो हम ये सोचते हैं कि BRL क्या होगा, ब्रैक्टियोलेट फ्लावर, ठीक है। यानी ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिए, ये BRL क्या हो जाएगा, ब्रैक्टियोलेट फ्लावर के लिए, ठीक। थोड़ा सा और मैं मैग्नीफाई कर दूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होता चले, ठीक है। यहाँ पे चलो, अभी तो सिंबल्स ही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, अगर फ्लावर में ब्रैक्टियोल नहीं है तो क्या बोलेंगे उसको, EBRL, ऐसे बोलेंगे EBRL, ठीक। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इसको आप लिखते जाएंगे तभी आपको इकट्ठे समझ में आएगा। चलो आते हैं नेक्स्ट, क्या है, कैलिक्स। क्या है कैलिक्स, सेपल के कलेक्शन को बोलते हैं कैलिक्स, और इसके लिए वर्ड यूज होता है की, सी नहीं यूज होता है, ये के यूज होता है, ठीक है। क्योंकि सी वर्ड किसके लिए यूज होता है, करोला के लिए, इसके लिए, ठीक है। अगर कैलिक्स है तो के, अगर ये करोला है तो सी। आप दोनों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ, के फॉर कैलिक्स, ठीक है, और सी फॉर करोला, ठीक। ये कोरोला के लिए होता है, ठीक है, और ये कैलिक्स के लिए होता है। दोनों को आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि दोनों सी से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, इसलिए दोनों के लिए सी यूज नहीं कर सकते हैं। तो किसी एक के लिए तो हमको के यूज करना ही पड़ेगा, तो कैलिक्स के लिए के यूज होता है, और कोरोला के लिए क्या होता है, सी वर्ड यूज होता है। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, नहीं तो आगे बड़ी प्रॉब्लम होगी। ये पेटल्स के कलेक्शन को कोरोला बोलते हैं, और सेपल्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, कैलिक्स, ठीक है। अब आते हैं पेरियंथ। लिसन, कभी कभी कंडीशन ये होता है कि ये कैलिक्स, ठीक है, कोरोला और कैलिक्स ये दोनों जो है अटैच में एक साथ फ्यूज रहते हैं, तो उस समय नया वर्ड यूज होता है टेपल्स और पेरियंथ, ठीक है। तो टी यूज तो करते नहीं है, टेपल्स नहीं यूज करते, पेरियंथ यूज करते हैं, ठीक है। तो पी वर्ड किसके लिए होगा, पेरियंथ के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पे नोट है, पेरियंथ वर्ड किसके लिए होगा, व्हेन द sepals and petals are fused to form the tepals or perianth, there will be the word p, ठीक। अब आगे आते हैं, अभी तो छोटे छोटे लेटर हैं, ये समझ में आ रहा है, नहीं तो आगे थोड़ा और प्रॉब्लम होगा तो चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, ठीक है। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट की मैं बात कर दूँ। नेक्स्ट क्या है, एंड्रोसियम। आपको पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लांट्स के क्या होते हैं, एंड्रोसियम होते हैं। जैसे ये क्या है, आपके एंथर है और फिलामेंट है, ठीक। इसको इस इकट्ठे बोला जाता है एंड्रोसियम, और इसके लिए जो वर्ड यूज होता है, जो लेटर यूज होता है, वो क्या होता है, ए। तो आप दिमाग में बैठा लीजिए, ए फॉर एंड्रोसियम, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, गाइनोसियम पे। आपको गाइनोसियम के बारे में समझा दें। गाइनोसियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, इससे पहले जो आपको मेल और फीमेल यानी स्टेमिनेट और पिस्टिलेट जो फ्लावर था, वो किसके लिए यूज़ था, वो फ्लावर के लिए यूज़ था। यानी अगर वर्ड ये लिखा हुआ है तो ये सिर्फ ये बता रहा है कि फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल है कि बाईसेक्सुअल है। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो या तो स्टेमिनेट होगा या फिर पिस्टिलेट होगा। पिस्टिलेट होगा तो ये वाला कंडीशन लगेगा, और स्टेमिनेट होगा तो ये वाला कंडीशन लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे एंथर, नंबर एंथर के कितने हैं, जैसे मान लो कि एंथर के नंबर 8 है टोटल, तो 8 है, ए हो जाएगा 8। अगर अगर टोटल नंबर 8 है एंथर का तो हो जाएगा A8, ठीक है। टोटल नंबर अगर एंथर के 10 है तो A10 हो जाएगा। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, ए रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एंथर। और ये मेल और फीमेल यानी कि स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर क्या यूज कर रहा था, वो ये बता रहा था कि फ्लावर जो है, फ्लावर के अंदर फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल है कि वो बाईसेक्सुअल है, ठीक है। चलो आते हैं, गाइनोसियम का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। आपको पता है कि ये जो स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है, ठीक है, ओवरी होती है, ये सब इकट्ठे मिलकर के क्या बनाते हैं, गाइनोसियम। और इसके लिए सिंबल यूज होता है जी, इसके लिए क्या यूज होता है, जी, ठीक है, जी फॉर गाइनोसियम। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट स्टेमिनोड। ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी स्टेराइल होता है फ्लावर जो है, नाइदर हैविंग अ गाइनोसियम नॉर हैविंग अ एंड्रोसियम, तो उसके लिए ये वर्ड जो होता है एस स्मॉल डी, स्टेमिनोड, ठीक है। स्टेमिनोड मीन्स द फ्लावर आर स्टेराइल, ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख लीजिए, फ्लावर्स आर स्टेराइल देन द कंडीशन इज नोन एज स्टेमिनोड। अब आते हैं नेक्स्ट की मैं बात करूँ, ओवरी सुपीरियर। ओवरी सुपीरियर मैंने बताया था कि 3 कंडीशन होता है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस। हाइपोगाइनस का कंडीशन क्या होता है, आपको बताया था कि अगर ओवरी ऊपर हो, सेपल पेटल नीचे हो, ऐसे हो, ये ओवरी है, ये स्टिग्मा स्टाइल है, अगर ये सेपल पेटल इस कंडीशन में यहाँ से निकलते हो तो ये बोलते हैं हाइपोगाइनस कंडीशन, ठीक है। अगर सेपल पेटल्स ओवरी
के नीचे हो, जैसे सेपल पेटल्स जो है ऊपर हो और ओवरी नीचे हो तो उसको बोलते हैं एपीगाइनस। और अगर सेपल पेटल जो है बीच में हो, इस तरह से हो, यहाँ से सेपल पेटल निकले हो और ओवरी उसी के पैरेलल यहाँ से हो, तो एक लाइन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेमी सुपीरियर सेमी इन्फीरियर। तो ये दो कंडीशन है, ये हाइपोगाइनस कंडीशन है, ये पेरीगाइनस कंडीशन है, ठीक है। और एपीगाइनस कंडीशन में क्या होता है कि सेपल पेटल ऊपर होते हैं, इस तरह से बताया गया था आपको डायग्राम में, उसका वीडियो लेक्चर भी पड़ा हुआ है, ठीक है। सेपल पेटल इस तरह से हो, तो ये है आपका सेपल प्लस पेटल्स, और ये क्या है, ओवरी है। तो ये कंडीशन बोला जाता है ओवरी इन्फीरियर, ठीक है। यहाँ ओवरी क्या है, डाउन है, सेपल पेटल टॉप है, तो ओवरी डाउन है तो ओवरी इन्फीरियर है। तीनों के लिए अलग अलग सिंबल भी यूज करते हैं। देखो अब आते हैं हाइपोगाइनस कंडीशन। हाइपोगाइनस कंडीशन को आप समझेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ ओवरी सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर, सुपीरियर मतलब सुपर और सुपर का मतलब ऊपर, यानी कि अगर आपको पता है कि जी फॉर गाइनोसियम होता है, तो गाइनोसियम ये सुपीरियर रहेगा तो उसके नीचे एक लाइन खींच दीजिए, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ओवरी सुपीरियर और हाइपोगाइनस कंडीशन। आप ये सिंबल देखते ही, ये वाला सिंबल देखते ही पहचान जाएंगे कि ओवरी हाइपोगाइनस है, एपीगाइनस है या पेरीगाइनस है। कैसे, मैंने बोला कि ओवरी सुपीरियर, अब यहाँ पे जी आपको टॉप पे करना, सुपर मैंने ऊपर, सुपर कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर हो गया, ठीक है। क्या ऊपर हो गया, ओवरी ऊपर हो गया, तो उसके नीचे एक लाइन खींच दो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ओवरी सुपीरियर, ठीक है। तो आगे से अगर कंडीशन अगर ये हो, आगे से अगर आपका कंडीशन ये हो ओवरी सुपीरियर, तो जी फॉर ओवरी रिप्रेजेंट कर रहा है, गाइनोसियम मतलब ओवरी का पार्ट है, तो उसको अगर सुपीरियर बनाना हाइपोगाइनस तो उसके नीचे एक लाइन खींच दीजिए। दूसरा कंडीशन क्या है, एपीगाइनस, ठीक है, यानी ओवरी इन्फीरियर। देखो एपी हाइपो और पेरी पे जाओगे तो कन्फ्यूज रहोगे। ओवरी इन्फीरियर का मतलब ओवरी नीचे, तो ओवरी इन्फीरियर के मतलब इसके ऊपर एक लाइन खींच देंगे तो ये ओवरी इन्फीरियर हो जाएगा, ठीक है। सेमी सुपीरियर सेमी इन्फीरियर, ओवरी के आगे ऐसे लाइन खींच दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका पेरीगाइनस, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एपीगाइनस और ये हो जाएगा आपका हाइपोगाइनस। आई होप आपको एक एक कॉन्सेप्ट सारा चीज़ें क्लियर हो गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल डिस्क्राइब यू द अदर इम्पॉर्टेंट फ्लोरल पार्ट्स that is in long form, that is in long form of along with their numbers। आगे का अब इसको जो है, ये तो बेसिक है ABCD, अभी तो हम लेटर बनाना सीखे हैं, अभी तो सिंबल का ज्वाइनिंग नहीं सीखे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सिंबल की ज्वाइनिंग भी बताना सिखा देंगे, ठीक है। अभी जितने भी चीज़ें मैंने इसमें बताया है आप एक एक पॉइंट्स अपने कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक। ज़्यादा कन्फ्यूजन आपका ओवरी सुपीरियर इन्फीरियर और हाइपोगाइनस यानी कि ओवरी सुपीरियर इन्फीरियर और सेमी सुपीरियर को लेकर के हो गया, एपी हाइपो और पेरी के लिए। तो अभी जान लीजिए ओवरी सुपीरियर के लिए ये कंडीशन रहेगा, ओवरी इन्फीरियर के लिए ये कंडीशन, सेमी सुपीरियर यानी पेरीगाइनस कंडीशन के लिए ये कंडीशन यूज होगा, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल डिस्क्राइब यू द सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन पार्ट सेकेंड। थैंक यू।